Hello students, welcome to Sairam English classes. In previous video, we have discussed the first part of class 8, chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Today's video, we will continue the chapter. But before continuing the chapter, please like and subscribe the channel for new updates. If you have already subscribed the channel, then please hit the bell icon on the screen. Till now, we have read that Bipin Chaudhary was a person who was not friendly in behavior and he lived alone after the death of his wife. He has not children. Suddenly, one day, a person may have met him in a bookshop and told him about the trip to Ranchi. And he was very much sure about that he never went to Ranchi. Now we will see the full video what happens at the end. He never had a fall as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but could not. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near, in Berindan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब उन्हें लगा कि उन्हें याद भी नहीं आ रहा था कि इंजरी कब हुई है, तो उन्हें सोचा सडनली उन्हें याद आया कि बिपिन मुखर्जी से पूछ सकते हैं हम फिर, और घर भी दूर नहीं है, बट फिर उन्हें ये भी अजीब लग रहा था कि अगर मैं जाऊंगा पूछूंगा तो वो कभी और ना मैं गया हूँ तो वो ये सोचेगा कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई है. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केसिज्म कुड बी. और उन्हें ये भी पता था कि दिनेश का जो मजाक है वो बहुत ही ख़राब हो सकता है. कितना बिहेवियर रूड बिहेवियर वो कर सकते थे उनके साथ. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन द एयर कंडीशनर लिविंग रूम, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in the new market. फिर भी उन्हें अब रात को वो सो गए डिनर करने के बाद, फिर भी और वो सब कुछ भूल गए. चलो जो भी है, क्योंकि कुछ उन्हें कहीं ना कहीं ये भी था कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो इंटरफेयर करते हैं और लोगों को नाराज़ करते हैं. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, Bipin Babu noticed that when every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a big mistake about the Ranchi trip? नेक्स्ट डे ऑफिस में Bipin Babu ने नोटिस किया कि जैसे जैसे घंटे बीते जा रहे थे उनको वो इंसिडेंट बार बार याद आ रहा था, वो आदमी याद आ रहा था कि इतना सब आदमी अगर जानता है तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब उन्हें लगा कि एक बार कंफर्म करके फ़ोन पे ही पूछ लेता हूँ. एटलीस्ट फ़ोन पे एम्बेरसमेंट फील तो नहीं होगा, वो मेरा फेस तो नहीं देखेगा, कि उसे मेरा फेस तो नहीं दिखेगा. 235616. Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you record an incident which took place in 58. अब उन्होंने नंबर लगाया और उनसे बात करनी शुरू की कि दिनेश बात कर रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना है जो चीज़ 58 में हुई थी. 58? What incident? Were in Calcutta, right through that year? That's the first thing I've got to know. अब एक बात बताओ मुझे, क्या तुम कलकत्ता में थे उस दौरान? Wait just a minute, 58. Just let me check in my diary. अच्छा 58. उसने बोला कि जरा मुझे चेक करने दो डायरी में. For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes, I've got it. I had been out twice. Where? अब थोड़ी देर चुप रहे सब क्योंकि वो ढूंढ रहे थे, और लेकिन उन्होंने नोटिस किया Bipin Babu ने कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उनको स्वेटिंग पसीना आने लगा था. फिर उसके बाद उधर से आवाज़ आई, हेलो, हाँ मैं 2 बार गया था. वेयर? उन्हें पूछा. वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. कि एक बार तो मैं फेब्रवरी में गया हूँ कृष्णानगर
मेरे भतीजे की शादी थी, और दूसरा तो तुम्हें पता ही होगा, ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लिचिंग अबाउट, लेकिन ये तुम ये इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रहे हो? नो, आई जस्ट टू एनी वे थैंक्स। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे ही पता करना था। विपिन बाबू स्लैम्ड दिस रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड। उन्हें रिसीवर को पटक के मारा और अपने हाथों को अपने सर को अपने हाथ से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हैड स्विमिंग। A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब उनका सर चक्कर आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। हालांकि और उनके पास टिफ़िन में सैंडविचेस रखे थे, बट उनकी भूख जा चुकी थी और उन्होंने कुछ नहीं खाया था। देयर सम मोर क्वेश्चन, यू हैव टू check them yourself. Third part. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. अब उन्हें बहुत ज़्यादा उससे लग रहा था कि शायद मैं ऐसे तो नहीं बैठा रह सकता यहाँ पर बैठे बैठे, ये सब चीज़ें नहीं सोच सकता हूँ। Back home at 2:30, Vipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury into the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering in the head. Single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब जब वो 2-2:30 बजे घर आए तो बेड पर लेट गए। वो सारी चीज़ें सोचने लगे, हिसाब किताब लगाने लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ मैं एक ही चीज़ भूल रहा हूँ और बाकी सब चीज़ें मुझे याद हैं, और वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ रांची जाने वाली, और इतना सारा मैंने वहाँ पर काम किया, इतने लोगों से मिला, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं सब चीज़ें भूल जाऊँ। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, says it is very important. Bipin Babu knew that what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him, and in fact he told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. अब 7:30 के आसपास उनका जो सर्वेंट था वो आया और उसने अनाउंस बताया कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। चुन्नी बाबू जो हैं उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे और उनका आजकल बहुत ख़राब टाइम चल रहा था और शायद वो जॉब के लिए कुछ चाहते थे, और विपिन बाबू इस समय उनके लिए हेल्प करना बहुत मुश्किल था, और वो चीज़ बता भी चुके थे उनको कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चुन्नी जो है वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो हमेशा ऐसी जगह पे आते जहाँ पर उनको कोई वेलकम भी नहीं करता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब उन्होंने विपिन बाबू ने कहलवा दिया कि बोल दो कि अभी तो क्या, और मैं कुछ हफ्तों तक नहीं मिल सकता हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। और जैसे ही जो सर्वेंट था उनको को मैसेज करने के लिए बोलने के लिए जाने लगा, तभी उन्हें याद आया कि अरे मैं चुन्नी से पूछ सकता हूँ, चुन्नी को तो ज़रूर कंफर्म होगा, क्या हर्ज है पूछने में। विपिन बाबू हरेड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। फटाफट नीचे आए लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, बट सीइंग विपिन बाबू हैप्पी ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी जाने वाला था, चुन्नी लाल, बट विपिन बाबू को जैसे उन्होंने देखा तो वो एकदम उन्हें कुछ उम्मीद हुई कि शायद मेरी हेल्प करने आए हैं, और वापस उन्हें पलट के देखा। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अब उसने उनसे सीधा पूछा कि चुन्नी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि, और तुम तो मुझे मिलते रहते हो, बहुत सालों से जानते हो तुम मुझे, और तुम्हारी मेमोरी अच्छी, तो एक बार बताओ मुझे, क्या मैं रांची गया हूँ कभी 58 में? चुन्नी सर 58, इट मस्ट बीन हाफ 58 और इट वॉज 59। उसने कहा शायद 58 था कि 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something?
As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेजुलस स्टेयर. अब उन्होंने जो है बोला कि तुम्हें पूछा कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था. अब चुन्नी बहुत सरप्राइज हुआ. चुन्नी उनके पास बैठा और बोला उससे कि विपिन, तुमने कुछ खावा तो नहीं लिया है, नशा वशा तो नहीं कर लिया है, तुम्हारा तो बहुत क्लीन रिकॉर्ड है. और हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड की, लेकिन तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो तुम ये सब चीज़ें नहीं भूल सकते हो. विपिन, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड सुहेलक. तुम्हें पता है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. Ibn Babu sighed and shook his head. फिर उसने बोला कि आपको पता है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? उन्होंने कहा, विपिन बाबू ने, हाँ मुझे पता है, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. कि जब तुम्हें इतना याद है तो तुम्हें इतना याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारा टिकट बुक कराया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का फ़ैन भी जो है काम नहीं करा था और मैंने इसे फिक्स कराया था. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Mr. Chandra, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. अब जो है परेश चंदा जो एक यंग फिजिशियन थे, उन्होंने उनको दिखाया तो उन्होंने भी बहुत थॉटफुल थे, उनको भी समझ नहीं आया था बिपिन बाबू के सिम्टम्स का. और उन्होंने बोला कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल लाइन. आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. अब उन्होंने बोला कि भाई बिपिन बाबू ने कि मुझे जो है तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरा काम जो है कितना डिस्टर्ब हो रहा है मुझे अपने काम में इन सब चीज़ों की वजह से. डॉक्टर चंद्रा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a such case as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. अब उन्हें बोला कि ऐसा पहला केस है ज़िंदगी का जो ऐसा हो रहा है और मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, हो सकता है ये काम करे या ना करे. विपिन बाबू लीनड फॉरवर्ड एनेक्सियसली. अब वो चिंतित होकर वो एकदम सुनने के लिए तैयार हो गई. As far as I can make out, said Dr. Chandra, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi and the same evening. फिर उन्होंने सजेशन दिया कि आप जाके काम कर सकते हो, रांची जाके देखिए, हो सकता है किसी वजह से आप उन सब चीज़ों को भूल गए हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, और आप जब दोबारा जाएंगे तो हो सकता है वो सब चीज़ें आपको याद आ जाए. तो नेक्स्ट, और उन्होंने कुछ उनको बोला कि स्लिप बहुत ज़रूरी है और थोड़ा मैं आपको दवाई वगैरह टॉनिक दे देता हूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग वो थोड़ा ठीक थे और उन्होंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिए बिपिन चौधरी ने कि, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया रांची के लिए. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once he had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove out the town for a while. He realized that the street, the buildings, the hotel, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? He didn't believe so. What at the same time? He didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. और जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, उन्होंने बिल्डिंग देखी वहाँ पर, और बाज़ार देखे, होटल्स देखे, मोराबादी हील देखी. कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो थोड़ा सा भी एक्वेंटेंस, थोड़ा सा भी वो परिचित हो, उन्हें कुछ याद आया हो. फिर उन्हें सोचा कि हुड्रू फॉल्स क्या पता वॉक करे या ना करे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो बिना कुछ वहाँ पर बिना एफर्ट किए वहाँ से वापस जाएं, कि
ऐसे कोई उनके मन में पछतावा रहे कि मैंने ये काम नहीं किया, शायद मुझे इससे याद आ जाता, और इसलिए उन्होंने एक टैक्सी जो कार है वो बुक की हुड्रू के लिए दोपहर में ही। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished, there is no hope left." Next morning, Bipin Babu was back in Kolkata. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think anymore. और उसी शाम को 5 बजे वो हुड्रू में जो थे 2 गुजराती जेंटलमैन थे, उन्होंने उनको एक ग्रुप में आए थे पिकनिकर्स के, और उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने जो है बिपिन बाबू को बेहोश पाया वहीं पर। और जो फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू बोल रहे थे कि मेरा जो है मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वापस वो कलकत्ता आ गए, और उन्हें वहाँ भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं सब कुछ खो दूँगा, मैं काम खो दूँगा अपना, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, एवरीथिंग, मैं अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी एबिलिटी चली गई, मेरा बैलेंस चला गया माइंड का, मेरा जो है मेंटल डिसबैलेंस हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि शायद मेरा जो एंड है, मैं जब मरूंगा तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब उन्होंने शाम को फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, डॉक्टर चंद्रा को, और अपना नहाए धोए वहाँ से आकर के, और उन्होंने एक आइस का बैग अपने सर पर रखा। उनका सर बहुत दुख रहा था, और तभी उनके सामने उनका सर्वेंट आया, और उसने उनके हाथ में एक एनवलप दे दिया जिस पर लिखा था कि अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। उनकी इस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है उसको, उन्हें लगा कि नहीं मुझे लेटर पढ़ना है। और लेटर में क्या लिखा था? नाउ वी विल रीड। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. योर सुनीलाल। अब उस लेटर में लिखा था, डियर पिपिन, मुझे आइडिया नहीं था कि जो है तुम इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा, और इतना मुश्किल था क्या एक अपने फ्रेंड की हेल्प करना, और उस फ्रेंड की हेल्प करना जिसका बुरा समय चल रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास साधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, इमेजिनेशन, और जिसमें जो मैंने यूज़ की है तुम्हें रिट्रिब्यूशन के लिए, मतलब पनिशमेंट देने के लिए यूज़ किया, तुम्हारे इस गलत बिहेवियर के लिए कि तुमने एज अ फ्रेंड मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने बदला लेने के लिए तुमसे ये सब प्रैंक खेला, ये सब मजाक किया। वेल, और तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और मैंने एक नावल भी लिखा है और वो पब्लिशर के पास जा चुका है, तो अब मुझे भी जॉब मिल जाएगी। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब जब डॉक्टर चंद्रा आए तो उन्होंने बोला बिपिन बाबू ने कि मैं ठीक हूँ, और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ ठीक है। ए यूनिक केस डॉक्टर चंद्रा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल। अब डॉक्टर चंद्रा ने कहा, अरे ये तो बहुत यूनिक केस है, और मैं इसके बारे में अपनी मेडिकल जर्नल, तो मेडिकल की बुक जो छपती है मैगज़ीन, मैं उसमें मेडिकल की जो मैगज़ीन छपती है मैं उसमें ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। और मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जो है रांची में गिर गया था, और मेरे जो हिप में चोट लगी है, और आप मुझे कोई पेन किलर दे दे तो, क्योंकि और उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था बिपिन बाबू को, और इसलिए उन्होंने डॉक्टर को सच नहीं बताया, क्योंकि
उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा था कि मेरे साथ जो हुआ शायद सही हुआ, मैंने अपने फ्रेंड की एक सही समय पर मदद नहीं की और इसीलिए मुझे ये सब सहना पड़ा. Thank you, and I hope you have enjoyed the lesson. So please like and subscribe the channel for new updates. Thank you once again.